Wishing you a happy, healthy, and prosperous new year. Dear MSc students, I am Dr. Suman Sharma. In your MSc semester 3rd, I have taught you organic special paper. The complete syllabus is almost finished. I hope you have prepared the theory accordingly. Now I want to discuss your practicals given in your syllabus for MSc semester 3rd. As you know, due to COVID-19 pandemic, your regular practical classes did not held. So the practicals will be possible to understand via video lectures. So you all expected to listen the working of practicals and then make the practical record book. I will check these practical records when you will be permitted to come in the college campus. Now today I want to explain the procedural steps of your major practical on saponification value of oil or fat. Determination of saponification value of the given oil or fats. Right? Now first of all, we know about what is saponification value. Now the basic principle of saponification value is saponification value is defined as the number of milligrams of KOH required to completely hydrolyze or saponify 1 gram of the oil or fat. In practice, a known amount of the oil or fat is refluxed with excess amount of standard alcoholic potash solution and the unused alkali is titrated against a standard acid. Now, we can say in other way, it is defined as the number of milligrams of QH required for saponifying free fatty acid present in 1 gram of oil. Right? Here is the reaction. ये है fatty acids. It's react with 3 moles of potassium hydroxide and we get glycerol or soaps, 3 moles of soap. Now, if we take excess of KOH in this reaction, some part of KOH will remain unused, right? So, it's the basic concept of saponification value, right? फिर आता है सिग्निफिकेंस. यहाँ पर हम देखते हैं ये है वेजिटेबल ऑयल और ये है मिनरल ऑयल. क्या इसका सिग्निफिकेंस है? इट कंटेन्स एस्टर्स ऑफ fatty acids, right? And mineral oil, it does not contain esters of fatty acids. Thus, every vegetable oil has fixed saponification value. Or in case of mineral oil has 0 saponification value. So, it's the basic difference of vegetable oil and mineral oil. Since each of the fixed oil has got its own specific saponification value, any deviation from this value in the given sample indicate the probability and extent to adulteration, right? यहाँ पर हम ऑयल दे रखे हैं और उनकी सपोनिफिकेशन वैल्यू दे रखी है. कॉर्न ऑयल की सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 187 टू 193. ग्राउंडनट ऑयल की सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 185 टू 195. कैस्टर ऑयल की सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 176 टू 182 एंड कॉड लिवर ऑयल की सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 180 टू 192, राइट? फिर आता है आपका मेन एम, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर लिखना है
क्या है इस मेन एम? टू डिटरमाइन सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द गिवन ऑयल और फैट। ये रिएक्शन दे रखी है, ये है ऑयल और फैट 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करके ग्लिसरॉल बनता है और सोप बनता है 3 मोल्स ऑफ सोप। ये हम लोगों ने अभी पहले वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? फर्स्ट है सैंपल, जिस भी ऑयल और फैट का आपको सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है वो आपको लेना पड़ेगा। फिर है अपरेटस, कौन कौन से अपरेटस यहाँ पे काम में लिए जाते हैं? जैसे कोनिकल फ्लास्क है, बीकर है, रिफ्लक्स कंडेंसर है, वाटर बाथ है, ब्यूरेट है, पिपेट है ना। ये सब चीज़ें अपन को यहाँ पे काम में लेनी होंगी। फिर है केमिकल्स, कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? 0.5N HCl, फिनोफ्थलीन एंड 0.5N अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट। फिर आता है इसका प्रोसीजर, क्या इसका प्रोसीजर होता है? अबाउट 2 ग्राम ऑफ द गिवन ऑयल और फैट इज टेकन इन अ कोनिकल फ्लास्क बट वेट एक्यूरेटली, ठीक है। द ऑयल और फैट इज डिजॉल्व इन 25 ml ऑफ 0.5N अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड solution. Then the reaction mixture is refluxed using a water condenser on a water bath for half an hour. The resulting solution is cooled and titrated against a 0.5N HCl solution, adding 1 ml of phenolphthalein. The number of ml of acid required is noted A. An exactly identical blank experiment leaving the fat or oil is performed. Number of ml of hydrochloric acid required is noted B. Here is the observation table. ये हमने यहाँ पर observation table बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये सैम्पल नंबर है, यहाँ पर इनिशियल ब्यूरेट की रीडिंग इन ml, फाइनल ब्यूरेट की रीडिंग और ये दोनों का डिफरेंस इन ml, ठीक है। ये क्या है? फॉर एक्सेस KOH रिमेनिंग, उसके लिए यहाँ पर रीडिंग आएंगी, और फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर रीडिंग आएंगी। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर ml के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या है, आपका एक डिजिटल बैलेंस है। इसके अंदर हमको जिस भी ऑयल या फैट का हमको सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ पर हम बीकर के अंदर लेते हैं। पहले बीकर, खाली बीकर का वेट लेते हैं, फिर उसके अंदर हम ऑयल डाल करके उसका वेट लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होता है वेट ऑफ ऑयल आ जाता है, ठीक है। और ये हम नियर अबाउट 2 ग्राम के आसपास लेते हैं, ठीक है। फिर जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमको एक ब्लैंक टाइट्रेशन करनी पड़ती है। ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर हमको ऑयल और फैट को यूज़ में नहीं लेना होता है, ठीक है। और ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि 0.5N जो है KOH का सॉल्यूशन 25 ml ले लेंगे और उसको हम 250 ml के मेजिंग फ्लास्क में डाल देंगे, और इस सॉल्यूशन को हम जो है वो डाइल्यूट कर लेंगे डिस्टिल वाटर मिला करके। यहाँ पर हम 25 ml डिस्टिल वाटर मिला देंगे और फिर इसको हम 0.5N HCl से टाइट्रेट करेंगे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर काम में लेते हुए, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसको बता रखा है। यहाँ पर ये हमने बताया हुआ है, ये क्या है कि जो भी हमको ऑयल जिसकी भी हमको सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है उसको लेते हैं और उसके अंदर एक्सेस KOH डालते हैं। फिर इसको वाटर बाथ पर वाटर कंडेंसर लगाकर रिफ्लक्स किया जाता है 1 से 2 घंटे के बीच में, और जो अनयूज जो KOH है उसको फिर हम HCl के साथ टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है वो जो भी हमको जिस भी ऑयल का सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाला, एक्सेस KOH है, रिफ्लक्स किया इसको 2 बार, उसके बाद इसके अंदर हम फिनोफ्थलीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको HCl के साथ टाइट्रेट करते हैं।
ठीक है। HCl के साथ टाइट्रेट, ये जो HCl है इसकी जो स्ट्रेंथ है ये भी 0.5 N होनी चाहिए, और इस HCl को भी हम पहले NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं, और NaOH की स्ट्रेंथ भी 0.5 N ही होनी चाहिए। जो NaOH है 0.5 N, उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाकर टाइट्रेट करते हैं, जिससे कि हमको यहाँ पर 0.5 N HCl की स्ट्रेंथ, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मिलती है। ये यहाँ पर हम इससे टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। ये हमने अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो एक्सिस KOH है उसको हम टाइट्रेट करेंगे, और यहाँ पर हम फिनोल्फिन इंडिकेटर काम में लेते हैं। टाइट्रेशन जब हम इसके अंदर HCl ऐड करते जाते हैं तो एक जो है पॉइंट ऐसा आता है जबकि उसका फिनोल्फिन का जो कलर है वो यहाँ पर जो है वो पिंक आता है, एंड पॉइंट पर यहाँ पर पिंक कलर आता है, वो हमारी फाइनल रीडिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो है हम इसको V1, ठीक है, V1 से इसको बताते हैं। ये है हमारी अनयूज्ड KOH इज टाइट्रेटेड, सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है। ये वही हमारा कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हमने ये अनयूज्ड KOH को टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl, राइट। ये यहाँ पर ब्लैंक टाइट्रेशन है, ठीक है। ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर केवल हमने जो है KOH काम में लिया है जो कि 0.5 N है, इसमें फिनोल्फिन ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में एंड पॉइंट पर जो है वो पिंक कलर आता है, और ये जो है वो अनयूज टाइट्रेशन के साथ कितना जो है वो यानी ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर कितना जो है HCl कंज्यूम हुआ उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको V2 से नोट करते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये आपकी विद अनयूज्ड KOH के साथ, और यहाँ पर ये है ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग, राइट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये क्यों है V2 और ये है V1, तो यहाँ पर V2 माइनस V1 क्या हुआ, अमाउंट ऑफ KOH कंज्यूम्ड फॉर द सैपोनिफिकेशन, ठीक है। जितना भी KOH का अमाउंट कंज्यूम हुआ है सैपोनिफिकेशन के लिए वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ HCl इज प्रोपोर्शनल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू के जो है वो प्रोपोर्शन में होता है, राइट। तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ KOH यूज्ड इन ml into normality of KOH into 56 divided by weight of oil in grams, ठीक है। ये है V2 माइनस V1 KOH into normality of KOH into 56 divided by weight of oil। तो यहाँ से हमको सैपोनिफिकेशन वैल्यू मिल जाती है, और फाइनली इसका कंक्लूजन हम लिख देते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द गिवन ऑयल और फैट इज दिस। जितनी भी सैपोनिफिकेशन वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर इसको लिखना है, राइट बच्चों। तो ये आपका किसी भी अननोन जो है ऑयल की सैपोनिफिकेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको हम जो है वो इस प्रोसीजर से बता सकते हैं, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।